Hello friends, welcome back to BBS Baba Physics. Today we are going to do hydrogen atom problem. So in this lecture, I am not going to describe all the steps of this because it will be very long. But what we are trying to do, what steps we need to remember so that we can reproduce those things in the examination, and at the same time we will be doing numericals as well. Very important, we are going to do the numericals as well associated with hydrogen atom problem. So let's move ahead. So what is energy? Energy is kinetic energy plus potential energy. This is very clear. So we have written this in the form of Hamiltonian, and what we have assumed that the potential, that is spherically symmetric potential about the central potential, the hydrogen, because of the nuclear central potential is there. So when we are writing Laplace in del 2, it's 1 by r square. You can take the r square outside because it's common. 1 by r square, dou by dou r square, dou by dou r plus sine theta. Let's see, here it is sine theta, not sine square theta, right? This is sine theta with theta, it is sine theta. 1 by sine theta, dou by dou theta, sine theta, dou by dou theta. And again, it is 1 by sine square theta, dou 2 by dou phi 2. This is phi. Now what is, this is theta from z, this is phi in the xy plane, we know all those, right? And this is r. So 1 by r square is common. Okay, now this is the angular momentum, the magnitude of angular momentum when we calculate in the angular momentum problem. So it came out to be minus of h square. Simply what you have to do, what you have to remember, is just remove this term, remove 1 by r square, write this term and multiplied it by minus of h square. So this is the magnitude of angular momentum, right? Operator, right? So this is it. Fine. What you have to do, remove all these terms, take this term and multiply it by minus of h cross square. That's it. Done. Aage. And so what it becomes, so we can replace this by L square. So what L square has become? Minus of L square h cross square by r square, right? So del 2 become 1 by r square, dou by r square, dou by dou square, minus of L square h cross by h square r square. Now moving ahead, so we'll be putting this in our h psi e psi. We'll be putting this equation in h psi e psi. What will become? So we are taking h psi minus h square by 2m. So we have written this del 2 and v psi e psi. Okay, now we know, we have already done these things in our angular momentum problem, that the magnitude of angular momentum is L is equal to root under L plus 1 h cross. That is what L square becomes L plus h square y. So this is YL ml theta phi, that is dependent upon the angular parts. This is azimuthal and the angular part is dependent. So psi, we are now we are taking the help of separation of variables, where we are trying to write psi in r psi and y theta phi. This is a function of r only, and this is y is a function of theta and phi. Now we are replacing psi in this above equation, so by doing the separation of variables and dividing all those by y. Okay, we are writing r y in terms of sigma, this, and we are dividing both sides by r. So what will you get? You will get 1 by r square, dou by dou r square, and this is full differentiation. There is, because we have already separated the variables, minus 2m by h, so v minus c r L plus 1 r square into r. So this is it. Now moving ahead with the equation. Now the step 1, you have to remember these steps. You have to remember this, or you can directly calculate, but in the examination it's preferable that you remember few steps. So moving ahead, what is r? R, we are assuming capital R is radial part, mu u by small r. We are assuming that capital R is mu u is some function u by r. So it will become 1 by r square, dou by r square. I am just trying to place this in terms of u. So it will come out 1 by r dou to u by dou r2. And now I am replacing this in the first step. So this equation come. Now you have to remember, this is simple putting of this equation in the above equation. Now what you have to do is, like, you have to assume, this is a very important step, you have to assume rho is what? Root under minus of 2me by h cross square r root under. So आप देख सकते हैं कि मोमेंटम की तरह है कुछ, by h cross square into r. ध्यान रखिएगा h cross square है, जैसे SHO में होता था ना, m ओमेगा रूट अंडर m ओमेगा h cross, वहाँ ये मानते थे वो SHO का है. तो यहाँ पे क्या मानना है? रो इज इक्वल टू रूट अंडर 2 माइनस बोल रहा हूँ, रूट अंडर 2me, क्योंकि ई जो है निगेटिव होगा, बाउंड सिस्टम है, h क्रॉस स्क्वायर इंटू आर. उसी तरह एक रो नॉट बाई रो की वैल्यू क्या होती है? v बाई ई होता है. इसको भी मानना है रो नॉट बाई रो इज इक्वल टू v बाई ई. रो की वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ,
और v बाई 1/2 मतलब v जो है मतलब माइनस में होता है 2 टाइम्स, है ना, तो ये आपका करके 1/2 आ जाएगा और r की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिएगा, ये सब आ जाएगा रो नॉट, ठीक है। नाउ d2u इज इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर d2u बाई d रो टू इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ रो नॉट ऊपर है, रो मत ऊपर है, रो नॉट बाई रो प्लस ऑफ एल प्लस वन बाई रो स्क्वायर, ठीक है। एल प्लस वन बाई रो स्क्वायर यहाँ क्यों होगा, इसे ध्यान याद रखने के लिए, क्योंकि यहाँ दो टर्म है, एल प्लस वन, ठीक है, बाई रो स्क्वायर और u, तो d2u क्या हो गया 1 माइनस रो नॉट, मतलब रोने की वजह से निगेटिव माहौल हो गया है तो यहाँ निगेटिव लग जाएगा, ऐसे याद रख लीजिए कुछ भी, 1 माइनस रो नॉट बाई रो प्लस एल प्लस वन बाई रो स्क्वायर multiplied by u. Now we are going to do zeroth approximation. Zeroth approximation क्या कह रहे हैं अभी देखिए, अभी now we are trying to say that r tending to 0, अगर r को आप 0 मान लीजिए, r tending to 0 तो रो भी tending to 0 हो जाएगा, करेक्ट, रो इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0, तो ये वाला क्वांटिटी इससे ज़्यादा कम होगा, तो आई एम टेलिंग ये नीचे कम है तो ऊपर वाला बढ़ जाएगा, तो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग कि ये वाली टर्म जो है डोमिनेट करेगी, आई एम अज्यूमिंग बिहेवियर कैन बी गवर्न बाय दिस टर्म, तो इस टर्म को आप एकदम हटा दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, सो व्हाट द इक्वेशन बिकम्स डो टू यू बाई डो रो टू इज इक्वल टू एल प्लस वन बाई रो स्क्वायर यू। नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, रो टू बाई डो टू यू बाई डो रो टू एल प्लस वन यू। अब यहाँ पे आप एक अजम्पशन मान लीजिए, कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए मान लेते हैं कि u इज इक्वल टू रो टू द पावर अल्फा, क्या है u इज इक्वल टू रो टू द पावर अल्फा, आपको दिखेगा वैसा ही आ रहा है। अगर आप इसको u इज इक्वल टू रो टू द पावर अल्फा du बाई डी रो करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा रो टू द पावर अल्फा माइनस वन, d2u बाई डो रो टू इज इक्वल टू अल्फा माइनस वन, ठीक है, डो रो बाई, ठीक है, अल्फा रो माइनस अल्फा माइनस 2, ठीक है, करेक्ट, इस तरह से आ जाएगा। इस इक्वेशन को आप जो है इसमें पुट कीजिए, सॉरी एक बार फिर करते हैं, डी यू बाई डी रो करना है, डी यू बाई डी रो, ठीक है, तो अल्फा रो अल्फा माइनस वन, d2u बाई डी रो टू अल्फा माइनस वन रो पावर अल्फा माइनस 2, ठीक है। नाउ यू हैव टू पुट दिस इक्वेशन इन दिस, एंड रो 2 है तो यहाँ पे फिर अल्फा हो जाएगा, करेक्ट, तो अल्फा माइनस रो पे पावर अल्फा इज इक्वल टू एल प्लस वन रो अल्फा, तो आप रो अल्फा हटा दीजिए, तो अल्फा की जो वैल्यू आती है, अल्फा की वैल्यू इससे आगे माइनस एल और एल प्लस वन, सो व्हाट यू आर गोइंग टू से, देयर आर टू सॉल्यूशन, हमें दो सॉल्यूशन आ रहा है। अब हम ई टू द पावर, हमने क्या अज्यूम किया था, यू रो टू द पावर माइनस एल आ गया और रो टू द पावर एल प्लस वन आ गया, ओके। अब क्या है, अगर दिस इज नॉट, ये सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जो कह दिया है कि अगर मान लीजिए रो जीरो हो गया, ऊपर क्या है रो हमने जीरो माना है, तो रो जीरो हो गया तो इस हिसाब से तो यू तो इन्फिनिटी हो जाएगी भैया, तो यू तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या, क्योंकि स्क्वायर इंटीग्रेबल और ये सब कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल ये सब तो फंक्शन होना चाहिए, तो क्या हो गया, आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, रो टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और इस केस में इसका मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द सॉल्यूशन, यहाँ से ये जो सॉल्यूशन आ गया वो सॉल्यूशन क्या आ गया, यू इज इक्वल टू रो टू द पावर अल्फा सॉरी एल प्लस वन, ये है मतलब जो सॉल्यूशन सेटिस्फैक्ट्री सेक्शन यहाँ पे। अच्छा, अब दूसरा जीरो तक अप्रोक्सीमेट एक बार क्या लेते हैं, आर को जीरो ले लेते हैं टेंडिंग टू, और दूसरे वाले में आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जैसे ही आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो इसका मतलब रो टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया, रो टेंडिंग टू इन्फिनिटी जैसे ही हुआ, रो टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब जो है d2u बाई डी रो टू, क्योंकि रो टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ठीक है, तो अब हम कह दिए कि ये टर्म जो है एकदम जीरो पे चला जाएगा और रो नॉट बाई रो है, तो ये वाला टर्म मतलब अब क्या, ये सब रो टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो बचा सिर्फ यू वाला टर्म, तो आप देखिए बस यू वाला टर्म बच रहा है, यू वाला टर्म बस बच रहा है। अब इसका क्या है, ये तो आपका ये वाला इक्वेशन आ गया है ना, ये मतलब एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन जिसका होता है वो हो जाएगा डी टू यू माइनस डी रो टू माइनस ऑफ यू, इसका इज इक्वल टू जीरो, इसका एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन होता था ए ई टू द पावर प्लस माइनस रो कर देंगे, ठीक है, ए ई टू द पावर प्लस माइनस रो कर दिया। अब देखिए ए ई टू द पावर रो जो है सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात, रो अगर टेंडिंग टू यू भी इन्फिनिटी हो जाएगा, वही बात है, स्क्वायर इंटीग्रेबल कंटिन्यूअस ये सब कुछ भी कह दीजिए, ये इन्फिनिटी, तो अपने यहाँ से ऊपर से क्या आ गया था यू रो टू द पावर एल प्लस वन, और यहाँ से क्या आ गया ई टू दी पावर माइनस ऑफ रो, ठीक है। तो अब जीरोथ एक्सप्रोक्सीमेशन से हमें सॉल्यूशन क्या आता है, तो मैंने रो एल पावर एल प्लस वन आया ऊपर से, और एक यहाँ माइनस रो आया, माइनस रो बाई टू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन का नेचर तो सेम रह जाएगा, करेक्ट, और ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने कहा भैया जीरो अप्रोक्सीमेशन से जो सॉल्यूशन आ रहा है वो ए रो टू द पावर एल प्लस वन ई टू द पावर माइनस रो बाई टू, ये हमारा सॉल्यूशन अब तक का। अब हमको चाहिए भाई, इससे समस्या का समाधान नहीं होता है, हमें इससे अच्छा सॉल्यूशन चाहिए, वी नीड अ बेटर सॉल्यूशन। हाउ डू वी गेट द बेटर सॉल्यूशन, बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। हम इसमें क्या करेंगे, एक वी रो का जो एक फंक्शन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे,
वी आर टेलिंग वी आर मल्टीप्लाइंग बाय फंक्शन वी रो, ठीक है। नाउ वी आर पुटिंग दीज इक्वेशन दिस, अब भाई अपने को u का वैल्यू पता चल गया, u क्या है वी रो e टू द पावर माइनस रो बाई 2 और रो टू द पावर l प्लस 1, ये हमारा जीरो अप्रोक्सीमेशन है। इक्वेशन 2 में पुट कीजिए, कौन सा है इक्वेशन 2 जरा देखें, इक्वेशन 2 ये वाला है, ठीक है, जहां हमने याद किया था, क्या याद किया था हमने याद किया था d2u बाई डी रो 2, है ना, d2u बाई डी रो 2, इधर था 1 माइनस क्यों, क्योंकि रोने वाला माहौल कर दिया था, रो नॉट ऊपर रो रहा था, रो बाई रो प्लस ऑफ रो बाई रो नॉट, उसके बाद यहाँ पे प्लस था, ठीक है, एल प्लस 1, यहाँ पे एल प्लस 1 था, 2 था, और उसी तरह रो स्क्वायर ऐसा कुछ था, है ना, देखिए एक बार देखिए क्या था, हाँ रो स्क्वायर था, ठीक है, रो स्क्वायर था, क्यों रो स्क्वायर था, क्योंकि 2 टर्म है इज यू, है ना। तो ये सब जो है आप यहाँ तक लिखिए, उसके बाद वो इक्वेशन लिखिए, नाउ टेलिंग कि ये सब इक्वेशन ऊपर पुट कर देते हैं, तो जो है हमारा ये सॉल्यूशन आ जाता है, सिंपल याद रख लेना, ये है लैगुएर्स डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, रो d2v बाई डी रो 2 प्लस 2l माइनस 1 रो dv बाई डी रो प्लस रो नॉट माइनस 2l प्लस 1 इंटू वी। तो एक चीज़ आप देखिएगा, एक चीज़ आपको देखने में थोड़ा सिमिलरिटी में रखेगा, यहाँ पे जो है 2 इंटू एल प्लस 1 माइनस रो 2 इंटू एल प्लस 1 माइनस रो dv बाई डी रो प्लस यहाँ जो 2l प्लस 1 है, यहाँ भी 2l प्लस 1 आ रहा है, पर रो जैसे ही रोना स्टार्ट करते हो तो माइनस आ जाता है, तो उसी तरह फिर से रो नॉट माइनस ऑफ 2l प्लस 1 इंटू वी हो जा रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रो नॉट माइनस ऑफ, यहाँ पे 2l प्लस 1 माइनस रो था, पर यहाँ रो नॉट, अगर रो रहा था तो इसको पहले रख दिए यहाँ पे, ठीक है, रो नॉट माइनस ऑफ 2l प्लस 1 वी, तो मतलब क्या हो गया अपना रो d2v बाई डी रो 2 प्लस ऑफ 2l प्लस 1 माइनस ऑफ रो नॉट नहीं होगा, रो नॉट होगा तो माइनस रो प्लस ऑफ रो रहा था रो नॉट, ये वाला जो 2l प्लस 1 है फिर से यहाँ देखेंगे माइनस ऑफ 2l प्लस 1, बाहर है 2l प्लस 1 v इज इक्वल टू 0, ठीक, डन। नाउ अब तीसरा स्टेप क्या कर रहे हैं, अब इसको अपने को सॉल्व करना है, तो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस बाय पावर सीरीज मेथड के लिए v को हमने मान लिया j टू द पावर 0 टू इन्फिनिटी a j रो टू द पावर j, तो dv बाई डी रो क्या हो जाएगा, j ए जे रो टू द पावर j माइनस 1 d2 j माइनस 1 ए जे रो टू द पावर j माइनस 2, यहाँ तक आप लिख दीजिए। नाउ टेल कि ऑल दिस वैल्यू हैव टू बी पुट इन दिस। अब ये सब करने के बाद हमारा एक रेकरेंस रिलेशन आता है, वी गेट अ रेकरेंस रिलेशन। रेकरेंस रिलेशन आने के बाद क्या लिखते हैं, ए जे प्लस 1 बाई ए जे इज इक्वल टू 2 जे भी एल भी प्लस 1 माइनस, देख रहे रो नॉट है तो माइनस तो कहीं ना कहीं रहेगा, माइनस रो नॉट बाई जे प्लस 1 जे प्लस 2l प्लस 2, याद रखना है, ठीक है, जे प्लस 2l प्लस 2 यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2l प्लस 2, मतलब 2l प्लस 1 था और j प्लस 1 अपने में खुद से ले लिया, j तो रहेगा ही, ठीक है, तो याद कर सकते हैं आप, थोड़ा सा बार बार इसको देखेंगे तो हो जाएगा ए जे प्लस 1 बाई ए जे इज इक्वल टू 2 जे प्लस एल प्लस 1 माइनस ऑफ रो नॉट बाई, ये जे है, जे अपना है बढ़ा लेता है, जे प्लस 1, जे बोला कि नहीं हम तुम्हारे साथ भी आएंगे, जे प्लस बोला ठीक है हमको तो मल्टीप्लाई करने दो अपने साथ कम से कम 2l प्लस 2, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते क्या से आते हैं रेफरेंस, ए जे प्लस 1 बाई ए जे इज इक्वल टू क्या 2 पहले है 2 जे प्लस एल प्लस 1 माइनस है क्योंकि रो रहा है माइनस ऑफ रो नॉट, ठीक, रो नॉट। अब जे बोला कि हम अपना बनाएंगे जे प्लस 1, ठीक है, जे प्लस 1, ये बोला ठीक, अब बोला हम भी अपना बनाएंगे एल, तो बोला ठीक है फिर भी हमको ले लो जे प्लस, बोला इसमें हम कम से कम 2 से मल्टीप्लाई होंगे 2l प्लस 2, ठीक। तो ये हमारा रेकरेंस रिलेशन हो गया। अब जो है दिस रेकरेंस रिलेशन हैज टू बी ट्रंकेटेड समवेयर बिकॉज द साइज जो है भाई कहीं तो ट्रंकेट होना चाहिए, इन्फिनिटी तक तो चल नहीं सकता, तो दिस सीरीज हैज टू बी कन्वर्जेंट एट जे सम, जे मैक्स की वैल्यू पे कन्वर्ज होगा, एल मैक्स नहीं बोल रहा हूँ, जे मैक्स की वैल्यू पे कन्वर्ज होगा। नाउ इसका मतलब ये जो है मैं जे मैक्स, क्योंकि यहाँ पे जे से हम किए ना, जे यहाँ जो लिखे हैं ये जे लिखे हैं ना, तो इसलिए जे मैक्स, तो जे मैक्स प्लस 1 बाई 1 कोई 0 हो गया तो इसका ऊपर वाला टर्म 0 हो गया, तो रो नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया 2 जे मैक्स प्लस एल प्लस 1, इसको मान लिया मैंने 2n मान लिया, ओके। अब n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, ऐसे ही, तो रो नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, रो नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, ओके। अब जो रो नॉट की वैल्यू ऊपर थी, रो नॉट की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है ना, राइट, रो नॉट की वैल्यू जो है रो नॉट की वैल्यू हमने यहाँ लिखी थी, ये वाली वैल्यू, रो नॉट की ये वाली वैल्यू जो है इसको लेके हम यहाँ पे डाल देंगे क्योंकि इसी वैल्यू से हमारा ये आता है, ठीक है। तो रो नॉट देखिए, रो नॉट आप जो है
ये वाली वैल्यू को आप रो नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2n, तो आप इससे कर देंगे तो इसमें ऑलरेडी था, तो ई एन इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एम ई पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बाई एच स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिएगा ई एन क्योंकि बाउंड सिस्टम में, माइनस एम ई पावर 4 पावर 4 ठीक, पावर 4 और 4 है तो नीचे 8 हो जाएगा इंटू 2 ई, अब इंटू 2 है तो 2 कहाँ से है, ई स्क्वायर एच क्रॉस नहीं है, ठीक है, एच स्क्वायर, तो मैं एक बार फिर से लूँ ई एन इक्वल टू एम ई पावर 4, यहाँ 4 है तो यहाँ 8 ई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो याद ही रहता है, ठीक है, तो ये पूरा याद रख लीजिएगा, इज इक्वल टू व्हाट माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से देखते हैं एन इज इक्वल टू व्हाट, एन इज इक्वल टू जे मैक्स है ना, एन इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ से देखिए एल इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ से 2 से 2 हटा, यहाँ से ये जो 2 हटा तो जे एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे मैक्स प्लस एल माइनस एन है ना, तो एल इज इक्वल टू माइनस एन, उस तरफ ले जाएंगे -1 माइनस जे मैक्स, तो एल मैक्स क्या हो गया, अब जे मान लीजिए एल मैक्स की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो जे मैक्स को तो 0 कर दीजिए आप, है ना, तो एल मैक्स की वैल्यू क्या होगी n-1 तक, तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे s इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1 में s इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू एल, क्योंकि सिर्फ एस होता है तो वहाँ पे एल क्या होगा, 0 हो जाता है, जैसे 2 मतलब मान लीजिए 1s 2p लेवल में 2s 2p होता है, ठीक है, तो वहाँ n इज इक्वल टू 2 होता है, तो वहाँ पे एल की वैल्यू कहाँ तक जाती है, p इज इक्वल टू 1 तक जाती है, समझ रहे हैं, तो यहाँ से आ रहा है एल मैक्स इज इक्वल टू n-1, एल इज इक्वल टू क्या होगा 0 1 2 3 एल n-1 तक। अब द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 विल बी लॉगर्स पॉलिनोमियल, आपने लॉगर्स पॉली, ये जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन किया इस पे आपने पावर सीरीज लगाया, पावर सीरीज लगा के आपने रिकरेंस रिलेशन निकाला, रिकरेंस निकलने आपने एनर्जी की वैल्यू निकाल दी। अब कह रहे हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा, जो आपने पावर सीरीज से पहले जो इक्वेशन है उसमें आप पावर सीरीज का सॉल्यूशन पुट करते हैं, तो लॉगर डिफरेंशियल इक्वेशन से जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा लॉगर्स पॉलिनोमियल, लॉगर्स पॉलिनोमियल आ गया, तो लॉगर्स पॉलिनोमियल आपने ये सब लिख दिया, लॉगर्स पॉलिनोमियल एल क्यू एक्स में लिख दिया, ई टू द पावर एक्स डी ऑफ क्यू एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स डी एक्स क्यूब, और इसको इस टर्म ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं एल माइनस 1 2l प्लस 1 2 रो, ठीक है, ये सब लिख दीजिएगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ n इज इक्वल टू 1 l इज इक्वल टू 0, ये तो पता है, n इज इक्वल टू 2 l इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए अलग अलग आर एन एल की वैल्यू ले रहा हूँ मैं, जो रेडियल फंक्शन होता है उसकी वैल्यू अलग अलग ले रहा हूँ, ठीक है, कि n इज इक्वल टू 2 के लिए एल इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, दोनों केस ले रहा हूँ, ठीक, 2s वाला केस ले रहा हूँ, ये वाला, ठीक, तो अब देखिए उसका जो वैल्यू है 2z0 z बाई ए नॉट पावर 3/2 z बाई ए नॉट पावर ई टू द पावर माइनस जेड आर बाई ए नॉट, तो ये n इसको ये तो याद रखना पड़ जाता है यार, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देता है, 1 0 इसको आप इसका एवरेज वैल्यू निकालिए ये सब, तो 2 जेड बाई ए नॉट पावर 3/2 ई टू द पावर माइनस जेड आर बाई ए नॉट 13.6 जेड स्क्वायर। अब इसका ग्राफ तो ये सही है, ऐसे रेडियल फंक्शन ग्राफ बन गया। अच्छा, नाउ व्हेन आई एम टेलिंग एन इज इक्वल टू, ये 2s के लिए समझिए, 2s और एल इज इक्वल टू 0, तो जेड बाई ए नॉट पावर 3/2 ऐसा ही रहेगा, यहाँ का जो 2 है वो नीचे आ जा रहा है क्योंकि यहाँ 2 है, ऐसे समझ लीजिए, यहाँ का 2 नीचे आ जा रहा है, ओके, और उसके बाद 2 का खूब इंटरफेरेंस है, 2 अब जैसे ये ई नॉट एक्सपोनेंशियल में भी जो है नीचे यहाँ 2 आ गया, एक्सपोनेंशियल में भी यहाँ 2 आ गया, और एक एक्स्ट्रा टर्म आ जा रहा है 2 माइनस जेड आर बाई ए नॉट, ये वाला जो टर्म है उसको 2 से माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं, ऊपर वाला याद करते हैं, ठीक है, ये जेड बाई ए नॉट पावर 3/2 था तो 2 नीचे आ गया, तो यहाँ पे 2 आ गया, उसके यहाँ पे जो जेड माइनस जेड आर बाई ए नॉट है तो 2 माइनस जेड आर बाई ए नॉट हो जाता है, ठीक, और एक्सपोनेंशियल में भी बाई 2 आ जाता है, ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी रेडियल फंक्शन है। नाउ ये जो है आपका 2p n इज इक्वल टू 2s l इज इक्वल टू 0, तो अब देखिए यहाँ पे 2 ये सब, अब ये बहुत 1/√124 कर दिया है भाई, 1/√124 जेड बाई ए नॉट, अब जो इतना ज़्यादा दे दिया तो ये जो 2 वो हट जाएगा यहाँ से, इतना ज़्यादा इसको 24 कर दिए, नीचे से आप बाहर निकाल दिए, तो जेड बाई ए नॉट पावर 3/2 जेड बाई ए नॉट पावर 3/2 जेड आर बाई ए नॉट, ये भी चुपचाप जेड आर बाई ए नॉट 2 हटा दो, जेड आर बाई 2 बाई ए नॉट, और उसके बाद पर यहाँ पे जो है वो माइनस ऑफ जेड आर बाई 2 ए नॉट रहेगा। तो मैं एक बार समराइज करता हूँ क्या करना है, n इज इक्वल टू 1 l इज इक्वल टू 0 के लिए 2 जेड बाई ए नॉट पावर 3/2 माइनस ऑफ ई टू माइनस ऑफ जेड आर बाई ए नॉट, माइनस तो रहेगा ही, प्लस तो होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि फिर चला जाएगा, उतना तो याद रख सकते हैं। अच्छा, n इज इक्वल टू 2 l इज इक्वल टू 0, ये जो 2 है वो अंदर चला जाएगा,
जेड बाई टू ए नॉट पावर 3/2। अच्छा, अब ये जो है इसके साथ टू माइनस जेड आर बाई ए नॉट, ठीक है, टू माइनस अब एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जेड आर बाई टू ए नॉट, जेड आर बाई टू ए नॉट, ठीक है। नाउ अब एन इज इक्वल टू 2, एल इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो 1/√124 जेड बाई ए नॉट पावर 3/2, जेड बाई ए नॉट पावर 3/2, जेड आर बाई ए नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ जेड आर बाई, मतलब ये सब ये वाला मैक्सिमम ऐसा ही होगा, बस जो है 1/√24 आ जाएगा और जेड आर बाई ए नॉट आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों ग्राफ। अब जो है ये तो मैंने आपको रेडियल फंक्शन के बारे में बताया। अब हम देखते हैं कंप्लीट आइजन फंक्शन फॉर द लोएस्ट फ्यू स्टेट्स। ये भी कुछ स्टेट्स को आपको याद रखना पड़ जाएगा। नाउ 1/√π जेड आर, ये वाला तो पूरा ही लिख दीजिए। ये वाला क्या है, जेड बाई ए नॉट पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ जेड आर बाई ए नॉट। इसके आगे 1/√π, क्योंकि जो वाई एल थीटा 5 है उसकी वजह से ये सब हुआ, ठीक है। तो उसका सब टर्म ये सब जो है कटवर्ट के कितना आ जाता होगा, देखिए 1/4π आ रहा होगा तभी ना, 1/4√π, 1/2√π ऐसा कुछ आता होगा, 2 से 2 कर जाता है √π, ठीक है। तो 1/√π आपका रह जाएगा। अब जैसे 100 तो यहाँ पे 200 मैंने कर दिया, NL ML है ना, तो 20 यहाँ पे 1/√π, यहाँ भी 1/, तो वही ऊपर वाला तो आप ऐसे ही नॉर्मल लिख दीजिए, ऊपर वाला तो ऐसे ही लिखा जाएगा डायरेक्ट। तो 1/√π याद रख लीजिए, 210। अब देखिए यहाँ 210, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी सब ये जो है ये वाला पार्ट तो वैसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट तो आपने ऐसे ही लिख दिया है ना, 1/जेड बाई ए नॉट। अब देखिए पावर जो है पावर 5/2 एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ जेड आर बाई टू ए नॉट कॉस थीटा ये सब भी आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो वाई एल थीटा है ना 3 cos स्क्वायर थीटा -1 वो सब का टर्म आ रहा है। तो आप बेसिकली यहाँ तक याद रख सकते हैं कि कैसे हो रहा है, डायरेक्टली आप जहाँ पे लिख सकते हैं, थोड़ा याद रख सकते हैं, यहाँ तक 1 और 2 तो याद रख सकते हैं, ठीक है। 1 और 2 आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग अहेड, अब रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कंसेप्ट समझ लेते हैं। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, डीपी क्या है, डीपी इज व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन आर एंड आर प्लस डी आर। ये आर है और ये आर प्लस डी आर है, तो इस बीच जो पार्टिकल की पाने की प्रोबेबिलिटी है, इसको रेडियल, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। अभी रेडियल नहीं बोल रहा हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी, ये जो रेडियल डीपी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल आर एंड डी आर, ठीक है। सिंपल इस रीजन में जो सेडेड उसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, ओके। अब जो कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी में बोल रहा था, अब मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोल रहा हूँ। डेंसिटी मतलब डी आर से अगर डिवाइड कर दूँ इसको, तो आप देखिए डीपी जो है बहुत कम प्रोबेबिलिटी आर एन आर प्लस डी आर फाइंड करनी, और डी आर खुद में छोटा है, पर इसकी डीपी बाई जी आर जो है वो फाइनाइट क्वांटिटी होगी। ये बात समझ रहे हैं, ये जो है। अब तो पी आर इज टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब डीपी क्या है, प्रोबेबिलिटी, उससे डी आर से डिवाइड कर दीजिए तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो गई। तो डीपी क्या हो गया, पी आर इंटू डी आर, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन अ वॉल्यूम डी टाउ क्या होगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट 4πr स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डी आर, राइट। तो ये हो गया। तो मैंने कह दिया प्रोबेबिलिटी क्या होता है, साई स्टार है ना, डी एक्स मतलब डी आर में पाना है तो डी आर, तो डी टाउ वॉल्यूम में पाना है तो डी टाउ, ओके। नाउ वी आर थिंकिंग, अब जो फाई है, ये जो फाई है, ये फाई मतलब साई है, उसको मैं अपनी जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में आर एन एल जो रेडियस पे डिपेंड कर दे, वाई एल एम एल थीटा 5, ठीक है। तो ये थीटा 5 पे डिपेंड करते हैं, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी 5, तो अब दोनों का स्क्वायर ये स्क्वायर कर दिया। अब बात ध्यान देने वाली बात ये है कि स्पिन पार्ट का कोई रोल नहीं है प्लस स्पिन इन डिटरमाइनिंग द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आप लिख सकते हैं कंसर्न्ड फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। हम जो अगर रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी व्हेन वी आर सेइंग देन वी आर कंसर्न्ड अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और हमें थीटा 5 से मतलब नहीं है, कोई भी थीटा दे दो भैया, कोई भी 5 दे दो, इट्स वेरी फाइन विथ मी। सो फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस बिटवीन आर एंड डी आर फ्रॉम द प्रोटॉन, लेट अस इंटीग्रेट द होल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ओवर द ऑल। सही बात है, सारे थीटा और फाई के, मतलब मैं कह दिया हूं आर और आर प्लस डी आर में, तो यहाँ पे कुछ थीटा हो, यहाँ थीटा हो, यहाँ थीटा हो, यहाँ कुछ भी हो, हमें क्या मतलब, वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट ऑल आर थीटा और फाई के लिए, पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे ही हम इंटीग्रेट करते हैं उसकी वैल्यू 1 आती है, क्योंकि एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू नॉर्मलाइज इट, ठीक है। तो बचता जो है वो पी आर डी आर इक्वल टू क्या है, ये स्मॉल पी आर जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, और ये पी आर डी आर टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो ये आर स्क्वायर आर एन एल मतलब रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन इंटू डी आर, तो क्या हो गया डी आर। अब जो डी आर हटा दीजिए मान लीजिए, तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, पी आर इक्वल टू आर स्क्वायर आर एन एल स्क्वायर। आर एन एल क्यों, क्योंकि एन और एल पे डिपेंड कर रहा है, और आर जो है वो हमारा रेडियल फंक्शन है। अब इसकी थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं। अगर R10 कहते हैं तो ऐसे बन गया, R20 कर दिए, 2 लूप आया,
R21 किए तो थोड़ा ऐसे प्रोडक्ट बना. Okay, now moving ahead to very important part of this lecture, that is questions from books. Okay, now moving ahead, obtain the average distance of the electron from the nucleus for the ground state of hydrogen atom. Ground state of hydrogen atom बोल रहा है, क्या कह रहा है, एवरेज किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालने के लिए क्या होते हैं, साई स्टार एक्स साई डी एक्स डी टाउ डी आर जो भी करना होता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहा है, ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एवरेज. तो हमने कोई भी फंक्शन ले लिया, साई स्टार एन एम एल एम ये सब कर दिया, आर स्क्वायर. अब जो वॉल्यूम एलिमेंट है आर उसके पूरे में इंटीग्रेट करेंगे जैसे ऊपर किए, तो क्या हो गया, वही आर एन एल वाई एम एल. क्या कर दिया, एवरेज डिस्टेंस के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू सेम ही होता है, तो आर एन एल स्क्वायर इसका स्क्वायर कीजिए, क्योंकि वाई एल एम एल इसका. अब देखिए अब क्या हो रहा है कि इसको हमने इसको भी हमने स्क्वायर किया है. अब मैं अलग अलग इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ये क्या 0 to infinity आर हो जाएगा, क्योंकि एवरेज वैल्यू पूछ रहा है, एवरेज वैल्यू एवरेज डिस्टेंस. ठीक है, तो ये 0 से इन्फिनिटी होगा आर का जो डी आर का है. ठीक है, और ये कहाँ, ये पूरे में जाएगा 0 to 2 पाई 0 to पाई. ठीक है, 0 to 2 पाई और 0 to पाई. सिंस द स्पेरिकल हार्मोनिक्स, इसको स्पेरिकल हार्मोनिक्स बोलते हैं. सिंस द स्पेरिकल हार्मोनिक्स आर नॉर्मलाइज्ड है, मैं मान लिया हूँ नॉर्मलाइज्ड, द वैल्यू ऑफ द एंगुलर इंटीग्रल, ये ऐसे भी ऊपर भी यही यूज किया है, नॉर्मलाइज्ड है, क्या दिए, यूनिटी है भाई, इसका यूनिटी है. बात खत्म. कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी पूरे सब थीटा और सब फाइव को कर देंगे तो उसी के बीच होगा ना. तो अब देखिए, दिस सोर्स फॉर फाइंडिंग द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी विच डिपेंड्स ओनली ऑन आर, वी नीड टू कंसीडर ओनली द रेडियल फंक्शन. वी हैव टू कंसीडर, ध्यान देना, रेडियल फंक्शन आर एन एल. तो एक्सपेक्टेशन आर एन एल इज इक्वल टू क्या, इसको स्क्वायर कीजिए, और ये वाला जो टर्म है, क्योंकि आर देखिए क्यों यहाँ पे आर क्यूब क्यों गया, क्योंकि आर स्क्वायर तो आपका पहले से ही था, आर स्क्वायर तो आपका आर स्क्वायर डी आर डी फाइव था, राइट, और वहाँ से आ गया था. और ये जो खुद है, मतलब इसके एक आर की वजह से इसका आर स्क्वायर इंटू आर, तो आर क्यूब हो गया. तो आर क्यूब अब क्या, R10 को अपन ऊपर याद रखा था, R1 क्या था, 10 था, 2 जेड बाई ए नॉट पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जेड आर बाई ए नॉट. यहाँ देखिए यही लिखा है ना हमने, हाँ यहाँ भी 2 है. ठीक है, यही तो कहा था कि नीचे 2 आ जाता है. ठीक है, याद रखना है. तो हमें जेड आर बाई ए नॉट यहाँ पे देखिए दिया नहीं था, अपने को याद रखना था. तो 2 जेड बाई ए नॉट पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जेड आर बाई ए नॉट. अब इसको आप भाई इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है ये वाला, इसको याद रख लेना है, 0 to infinity x पावर n e टू द पावर माइनस ऑफ ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल a टू द पावर n+1. ठीक है, वही वाला याद रखना, इसको यहाँ डायरेक्टली आप यूज़ करेंगे, ये आ जाएगा. अब बहुत सुंदर बात है, देखने की बात ये है कि जैसे जैसे जेड बढ़ता है वैसे वैसे जो है इसका एवरेज वैल्यू कम होते जाता है. ऑब्वियसली जैसे जैसे जेड बढ़ेगा तो मतलब जो न्यूक्लियस है इसको और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब जो इसका एवरेज वैल्यू वो और श्रिंक करते जाएगा. नोट, लार्जर द वैल्यू ऑफ जेड, स्मॉल इज द वैल्यू ऑफ average value of R. This is expected because higher charge on the nucleus, more is the inward pull on the electron. Calculate the most probable distance of electron in ground state of hydrogenic atom. What? मोस्ट प्रोबेबल बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज इट इज टेलिंग, मोस्ट प्रोबेबल. तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी है उसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, डीपी बाई डी आर जो है वहाँ पे जो है 0 कर दीजिए, वही मोस्ट प्रोबेबल होगा. अब कह रहा है व्हाट इज द रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, बात कर रहा है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. हमने क्या किया था, जो रेडियल फंक्शन है आर एन स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर कर दिया था, करेक्ट, यही तो किया था. यही होता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट दैट डिस्टेंस. पहले तो हम क्या करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं मोस्ट प्रोबेबल, उसके बाद रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पे आ जाते हैं. तो पी एन एल ये है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, हमने अभी जस्ट डिस्क्राइब. फॉर द ग्राउंड स्टेट P10 क्या हो जाएगा, P10 जो है 10, और इसका मतलब R10 हमने क्या देखा था, यहाँ 2 था भाई, जेड बाई ए नॉट था. ठीक है, 2 बाई जेड बाई ए नॉट पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ जेड बाई, यहाँ जेड बाई ए नॉट ऊपर जो है डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो आर भी होगा. ठीक, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो P10 4 जेड क्यूब बाई ए नॉट क्यूब आर स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस 2 जेड आर बाई ए नॉट, क्योंकि स्क्वायर हो गया. ठीक है, अब कह रहा हूँ मैं प्रोबेबिलिटी विल बी मैक्सिमम, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को मैक्सिमम कर रहा हूँ, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी विल बी मैक्सिमम हो जाएगा. ठीक है, प्रोबेबिलिटी डीपी बाई डी आर, तो क्या कर दिया मैंने, तो हमारा आया जेड नॉट ए नॉट बाई जेड. बहुत सुंदर. अगर मान लीजिए ये जो आप जेड ए नॉट जो है, ये बोर्ड रेडियस जो होता है 0.589 एंगस्ट्रॉम, अगर जेड इक्वल टू हाइड्रोजन एटम क्लिक करेगा तो वही आएगा. दिस इज रिक्वायर्ड द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू. इसका मतलब क्या है कि मोस्ट प्रोबेबल अगर आप निकाल रहे हैं इतना कैलकुलेशन करने के बाद, तो जो बोर्ड जी ने निकाला है सेम अपने तरीके से वही आता है. ठीक है,
दिस इज रिक्वायर द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ द रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब क्या कीजिए, आप इस वैल्यू को ऊपर वाले में पुट कर दीजिए, आपका आ जाएगा, आपका वही निकालना है ना, व्हाट इज द रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस, मोस्ट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जहाँ हाई है वही निकाल दीजिए। तो हम समझ के इस क्वेश्चन में करना क्या है, इसका मतलब रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लिखनी है, आर एल को वैल्यू पुट करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके जीरो करके आर की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू इसमें पुट कर दी, नहीं वही हो गया, खत्म बात, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट 1 एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ 1/r, 1/r एक्सपेक्टेशन वही होगा साई स्टार 1/r साई। अब कौन से स्टेट में बोल रहा है ये भी तो देखिए, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ग्राउंड स्टेट मतलब वही r 10 कर दीजिए एंड यूज द रिजल्ट टू कैलकुलेट द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी कह रहा है एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी कह रहा है, बहुत सुंदर। R10 फिर से याद करते हैं, R10 क्या है, 2 तो रहता है भाई, अच्छा ठीक है 2 रहता है, ऊपर क्या होता है ZR/A0 है ना, ZR/A0, ठीक है। एक बार मैं भी देख ले रहा हूँ फिर से, यहाँ देखिए वही लिखा ना, ZR नहीं रहता है, देखिए कंफ्यूजन हो रहा था मुझे, यहाँ पे जो है ऑब्वियसली डायमेंशन रहना चाहिए, यहाँ पे PR10 इज इक्वल टू क्या है 2 Z/A0, R नहीं है, Z/A0 पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल में Z/A0 तो है ही, साथ में R भी है, वही 2 R20 इज इक्वल टू क्या होगा Z/2A0 हो जाता था, है ना, 2 पावर 3/2 तो रहता ही था, और यहाँ जो 2 है 2 माइनस ZR/A0 और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ZR/2A0, ठीक। तो यहाँ पे वही हो गया R10 इज इक्वल टू 2 Z/A0, R नहीं होगा, पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस Z/A0 इंटू R, वही हो गया, स्क्वायर कर दिए तो 2 ZR आ गया, ठीक है, 1/r स्क्वायर कर दिए तो Z/A0 आ गया, सही बात है, एक बार याद रखते हैं, अगर R था, अगर इसका R कर रहे थे तो A0/Z आता है, तो अगर 1/r कर दिया तो Z/A0 आ गया, वाह बहुत सुंदर, ऐसा ही आ रहा है, सही है। तो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी KQ/R होता है, K इज इक्वल टू 1/4πε0 ZE²/KQ/R। तो अब इस ये सब का तो कांस्टेंट है, तो 1/r का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, 1/r Z/A0 आप यहाँ से डायरेक्टली पुट कर दीजिए, आपका आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह टोटल एनर्जी, अब ये काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी माइनस टोटल एनर्जी हमने क्या याद रखा था, m माइनस ऑफ m⁴ 4 था तो यहाँ 8 आ गया था, 8 है तो 4 2 जा 8 मतलब ε0 h² क्रॉस नहीं था यार, h² था, Z²/n² है ना, तो वो पुट कर दीजिए, इसमें डालिए, वैल्यू आ जाएगा, खत्म। तो आप ये प्रूव कर सकते हैं। दिस रिजल्ट इज द क्वांटम मैकेनिकल इक्विवेलेंट टू क्लासिकल, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, क्लासिकल वीरियल थ्योरम। ये जो क्लासिकल वीरियल थ्योरम होता था ना कि 2t + v0 इज इक्वल टू 0, क्लासिकल वीरियल थ्योरम उसका इक्विवेलेंट है, ठीक है। बट इट इज ट्रू नॉट ओनली फॉर द ग्राउंड स्टेट बट ऑल बाउंड स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन। कितनी सुंदर बात बोली, इट्स उसमें सिर्फ ग्राउंड स्टेट की बात नहीं है, ऑल बाउंड स्टेट्स के लिए कह रहा है, ऑल बाउंड स्टेट्स ऑफ द हाइड्रोजेनिक एटम्स। लेट्स मूव अहेड विद डिफरेंट न्यू क्वेश्चन। द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ऑफ द हाइड्रोजन एटम, इसमें दे दिया, पूरा का पूरा दे दिया आपको, पूरा का पूरा दे दिया। ऊपर हम लोग रेडियल बात कर रहे थे तो इसलिए 1/√π ये सब नहीं लिख रहे थे, ओके। Now, the calculate the probability of finding the electron at a distance less than A0, बहुत from the less than A0 मतलब क्या हो गया, 0 से A0 कर देंगे डिस्टेंस, है ना। अच्छा हमको क्या था याद, R10 याद कर रखा था मैंने, क्या था 2 Z/A0 पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस Z/A0 इंटू R। अब यहाँ पे अगर साई 10 करना है, 100 करना है, तो हम क्या कहते हैं, 1/√π से मल्टीप्लाई कर दिया था, बाद बाकी वही रहने दिया था, है ना, जेड को 1 पुट कर दीजिएगा, तो यही जो है सेम चीज़ यही लिखा हुआ है, ठीक, ओके। अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है भाई, प्रोबेबिलिटी तो साई स्टार है ना, और डी टाउ को 4π² dr लिख दिया है, ओके। अब हमको पता है ये सब जो है सिर्फ 4π डायरेक्टली कैसे लिख दिया, वो इंटीग्रेट कर दिए, जो एज्यूमेथल सिमेट्री और वो सब करके, हार्मोनिक सिमेट्री करके ये सब आप सब कर दीजिएगा, तो 4π आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू। अच्छा अब आप P1 निकालिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको देखिए। अब जो है इंटीग्रल आपका ये इंटीग्रल आ गया, ये कैसा फॉर्म है, 0 to A0 e⁻x²। अब देखिए यहाँ पे जो है फॉर्मूला चलेगा नहीं एक्चुअली, क्योंकि फॉर्मूला जो है ना वो इन्फिनिटी के टर्म्स में चलता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गया यहाँ पे। फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं चलेगा, यू हैव टू खुद से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लिमिट है। वी नो फ्रॉम द टेबल ऑफ इंडिफिनिटी इंटीग्रल, तो ये थोड़ा देख लेना पड़ेगा खुद से, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये सब डाल के उसमें कर देते हैं, इसको याद ही रख लेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा तो आया हुआ है पहले यूपीएससी में फिर से। तो P1 आ गया, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी P2 क्या कह रहा है, P2 दूसरी वाली देखिए, P2 कह रहा है बिटवीन A0/2 इंटू 2 A0 फ्रॉम द न्यूक्लियस लेस देन। अच्छा हमने कहाँ तक निकाल लिया था, लेस देन निकाल लिया था, मतलब लेस देन A0 तक निकाल लिया था, इसके A0 तक में कितना होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है A0/2 से 2 A0, ओके।
तो P1 तो इतना आ गया, P2 इक्वल ए नॉट बाई टू से वही आपको फिर से वो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और आ जाएगा, ठीक है। वही ध्यान बस ये रहे, इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपेयर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम एट अ डिस्टेंस वाई ए नॉट बाई टू फ्रॉम द न्यूक्लियस वेयर ए नॉट इज द बोर रेडियस, ठीक है। तो वही ऊपर वाला सवाल है, फिर से ऊपर वाला सवाल मतलब उस टाइप का है। कंपेयर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एट अ डिस्टेंस ए नॉट एंड ए नॉट बाई टू फ्रॉम द न्यूक्लियस वेयर ए नॉट, ठीक है। 1 0 के लिए हमने कर दिया है, कर रखा है ना, 2 जेड बाई ए नॉट पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जेड बाई ए नॉट इंटू आर, ठीक कर दिया। P10 आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। P10 ए नॉट, एक जगह ए नॉट है, एक जगह ए नॉट बाई टू है, दोनों का 1.4 था रेडियो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का। अच्छा एक बार देख लेते हैं, अब ये सब जो किया उसको मैं समराइज कर रहा हूँ। तो आइकन वैल्यू ई एन इज 2n स्क्वायर डी फोल्ड जनरेसी है ना, 2n स्क्वायर डी फोल्ड जनरेसी हो गया ना। तो ठीक है, द क्वांटम स्टेट्स NLM डिस्क्राइब INS इन यूनिकली ओनली इफ कूलम इंटरेक्शन जो है वही तो कंसीडर किया है। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट फॉर द हाइड्रोजन एटम इज 0 इन कॉन्ट्रास्ट विथ बोर्स मॉडल। कितना बात इंपॉर्टेंट कह रहा है, बहुत सुंदर बात कह रहा है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0, S1s के लिए क्या था, L इज इक्वल टू 0 था। इन कॉन्ट्रास्ट विथ, वहां पे हम नहीं ले रहे थे 0, बोर्स मॉडल। द स्टेट्स L इक्वल 0 1 2 3 as PDF कर दिया। ऑल S states are specifically symmetry but other states are not. The radial probability density for a state with highest probability L-1 ये सब पता ही है, has a single maximum at R is equal to n square a naught, है ना। The radius predicted by Bohr model, है ना, ये इससे the single maximum at R and for lower values of L there are more than one maxima, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द प्रोटोन एल एस कपलिंग होता है, LZ EZ ये सब देख लिया, NL MLZ ये सब हो गया, ठीक है। सॉल्व प्रॉब्लम के बाद देख लेते हैं, फिर से वही आर स्क्वायर के एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है, निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसके लिए कह दिया, ग्राउंड रेडियल प्रोबेबिलिटी PR हम लोग को पता है वही है 2 जेड बाई ए नॉट, ठीक है, जेड बाई ए नॉट है ना। फिर से जो एक्सपोनेंशियल जेड और यहाँ पे कर देंगे माइनस जेड आर बाई ए नॉट, ठीक वैसे ही है ना, वैसे ही हमने कर दिया, यहाँ पे वैसे ही लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम जो है वो सिमिलर प्रॉब्लम्स मैंने 2 बुक्स से लिए, तो सेम टाइप के प्रॉब्लम्स रिपीट हो सकते हैं, बट इट इज़ गुड फॉर अस सो दैट कि रिवाइजन हो जाए। ओके, सो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ये सब इंटीग्रेशन कर दिया आपने, 1/r अपन ऊपर कर चुके हैं, डन। पी स्क्वायर का देखना, हाँ ये नया क्वेश्चन है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर फॉर अ सिंगली चार्ज हीलियम आयन मतलब हीलियम-2 4 हीलियम चार्ज सिंगली चार्ज। तो इसका मतलब क्या, इन इट्स ग्राउंड स्टेट, तो हैमिल्टोनियन हीलियम He+, हीलियम He+ कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद p²/2 है माइनस ई, ये सब 1/r कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हैमिल्टोनियन लिख दिया। द एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट इज -13.6 Z²/n² एंड हैज़ अ डेफिनेट वैल्यू। सो H की वैल्यू जो है वहाँ से आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे H। ऑल्सो प्रूव इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, ये जो है हमने ऊपर से प्रॉब्लम ये कर दिया है। तो आप जो है जब p² की H की जगह आप डायरेक्टली ये पुट कर देंगे, और 1/r की वैल्यू ऊपर से हमने देखी रखी है ना, ऊपर के Z0/A/Z आया था, अगर R का था Z0/A, तो उस तरह से कर दिया, ठीक है। ओके, कैलकुलेट द मोस्ट प्रोबेबल सेपरेशन बिटवीन प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन 2p स्टेट। 2p स्टेट कह रहा है, 2p स्टेट मतलब क्या, n = 2 L = 1। हमने याद किया था क्या, हमने याद किया था ऐसा कि क्या था, जो ये याद किया था Z/A0, Z/A0 वहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आ जाता था, 2 वाला हट जाता था, राइट। उस तरह से हमने याद किया था। तो वो आप ऊपर से एक बार हम लोग देख लेंगे, ऊपर से हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी हमने जो टेबल बनाया था उससे याद किया था। तो ये वाला टेबल है ना, यहाँ पे 2 1 याद किया था। क्या किया था हमने कि जो ये सब जो है ये वाला ऊपर वाला टर्म से सिमिलर होगा, ये वाला टर्म भी सिमिलर होगा, बस यहाँ ये इसके साथ आ जाता है, /2 आ जाता था, और ZR/A0 और 1/√124 आ गया था, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 1/√124 एंड Z/A0 पावर 3/2 एकदम सिमिलर, e⁻ है यहाँ पे एकदम /2 आ जाएगा, और ये जो है ये वाला टर्म यहाँ सिमिलर आ जाएगा, ठीक है। यही किया था। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा क्या हो गया, मतलब Z/A0 पावर 3/2 आ जाता है, करेक्ट। Z/A0 पावर 3/2 आ जाता है, और एक्सपोनेंशियल में हमारा जो है Z/A0/2 आ जाता था, और Z/A0 आ जाता है 1/√124, ठीक है। तो उसको क्योंकि यहाँ पे RNL है तो आप उसको लिखिए dp/dr कर देंगे, तो 0 कर देना, तो R = 4A0 पे आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम हैज़ अ वेव फंक्शन, वेव फंक्शन दे रखा है, A0 दे रखा है।
कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इलेक्ट्रॉन विल बी फाउंड विद इन अ डिस्टेंस अप टू बोर रेडियस। बोर रेडियस 0 to a0 पे कर दीजिए, 0 to a0 पे कर दीजिए, इसको आप प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सिंपल सा फॉर्मूला इसमें जो हमने डिस्कस किया, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो वाला इंटीग्रेशन आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये वाला इंटीग्रेशन, बिकॉज यहाँ पे लिमिट a0 तक ही है। नाउ मूविंग एट द लास्ट क्वेश्चन, the hydrogen atom in a 2p state, all possible values of jet components of the orbital angular momentum are equally probable। मतलब all possible values of jet component, all possible of jet ml, l है तो ml वैल्यू है ना, l इज इक्वल टू 1 है तो ml इज इक्वल टू क्या हो सकता है, -1 0 1 हो सकता है ना भाई। राइट द वेव फंक्शन स्पेस पार्ट कह रहा है, स्पेस पार्ट ऑफ द एटम 2p n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू क्वांटम नंबर ml 0। ठीक है, 3 कॉरस्पॉन्ड lz इज इक्वल टू ml इज इक्वल टू क्या होता है ना, lz इज इक्वल टू ml h क्रॉस होता है, ml h क्रॉस तो क्या हो गया 0 h क्रॉस, एक क्या lz h क्रॉस 0 माइनस h क्रॉस, द 3 वेव फंक्शन स्पेस पर कॉरस्पॉन्डिंग टू वैल्यू क्या हो गया r 2 1, यहाँ 1 1 हो जाएगा, l ml होता है 1 0 हो जाएगा, 1 -1 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशंस इन द गिवन स्टेट क्वेश्चन 3 आर इक्वली प्रोबेबल, सो द वेव फंक्शन विल बी ए सुपर पोजिशन। सब इक्वली प्रोबेबल है यार, सुपर ऑल द 3 विथ इक्वल कोएफिशिएंट भी इक्वल होगा। इन ऑर्डर टू कीप द वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड दिस फंक्शन शुड बी 1/√3। सही बात है ना, तीनों है, स्क्वायर करना है, 1/3 प्रोबेबिलिटी इसका है 1/3, तो इसका जो आगे का जो फंक्शन होता है 1/√3 हो जाएगा, तो 1/√3 आ गया। So this is the end of the lecture. Thank you very much for listening.